Hello and welcome everyone. I'm your science teacher Himlata Chandolia, class 8. Today we are going to start a very interesting and exciting chapter of class 8 science, that is chapter number 17, and name of chapter is Star and the Solar System. Class 8, from our primary classes till now, for many times we already had discussed about the sun, the moon, stars, the solar system, isn't it? So what will be the new in this chapter? For that you have to wait, class. In today's video, class 8, we are going to discuss about moon and the stars. Students, there is a phrase, a night sky has 1,000 eyes, but the day sky is having only one. So what is the answer, class? Your answer is here in this picture. Yes, when we see the night sky, we observe many bright objects in the sky. अब हम कह सकते हैं तारे हैं, चांद हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं. So there are 1,000 eyes in the night sky. But remember or just recognize that at the time of day, when you see the sky, there is only one bright object, and that is sun. Clear, everyone? So students, in today's video we are going to discuss about these bright objects which we observe in the night sky. अच्छा, अब नाइट स्काई के अंदर भी बच्चा, अगर हम बात करें कि सिटीज़ की, तो बच्चा सिटीज़ के अंदर ये जो नाइट स्काई होता है, इट इज़ नॉट सो क्लियर बिकॉज ऑफ लाइट्स एंड बिकॉज ऑफ पोल्यूशन. इसलिए हमें कुछ स्टार्स नज़र आते हैं और मून नज़र आता है. क्लियर एवरीवन? बट व्हेन द कंडीशंस आर इन फेवर, लाइक the atmosphere is clear and there is no bright light, just like the night sky that we had seen any time at the villages. Clear, everyone? So in the villages, when we observe the night sky, we observe so many bright objects. Some are twinkling and some are having steady light. Clear, everyone? So student, it is वेरी फैसिनेटिंग टू ऑब्जर्व अ नाइट स्काई. आज शाम को ही, आज रात को ही जाके आसमान को देखने की कोशिश करना, आपको बहुत मज़े आएंगे. क्लियर एवरीवन? सो क्लास, वी नो दैट द एंटायर स्काई डॉटेड विद countless stars, some bright and some not so bright. Yes, कभी आसमान में देखना, कुछ तारे तो बहुत चमकीले होते हैं और कुछ इतने ज़्यादा चमकीले नहीं होते हैं. Clear? The objects which do not twinkle are planets. Have you heard the poem that is Twinkle, Twinkle, Little Star? That means stars are twinkling. Clear, everyone? But प्लैनेट्स ट्विंकल नहीं करते, टिमटिमाते नहीं हैं. क्लियर एवरीवन? और हम कौन से प्लैनेट पर रहते हैं क्लास 8th? यस, ऑन अर्थ. द मून इज द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द नाइट स्काई. आपने कभी गौर से देखा हो, ध्यान से देखा हो, तो एट द टाइम ऑफ नाइट moon is the brightest object in the sky. Yes, it is appearing more bright than the stars. Clear? और हमें स्टार से बड़ा भी नजर आता है. ओके, अभी बड़ा क्यों नजर आता है, दैट वी विल डिस्कस लेटर. ओके, द स्टार्स, द प्लैनेट्स, द मून and many other objects in the sky are called celestial objects. Very important, class 8th. आपके तारे, आपके प्लैनेट्स, मून और भी अदर ऑब्जेक्ट्स जो हमें आसमान में नजर आते हैं, दे आर celestial objects. Clear, everyone? The study of celestial objects and associated phenomena, clear, is called astronomy. समझ में आ गया? In ancient India, our ancestors performed methodical observation of sky. Yes, हमारे लिए ये observation कोई नया नहीं है. हमारे पूर्वजों ने बहुत ऑब्जर्वेशन किए और हमारे यहाँ पे बहुत मान्यता है इन सब चीज़ों की. क्लियर एवरीवन? Their knowledge of astronomy was highly advanced for their time. Passage of the sun, stars,
moon and planets in the sky help them to devise calendars and देखो बच्चा, हमारे पुराने ज़माने में कोई ऐसे कैलेंडर्स नहीं बनाए जाते थे। ये तो कुछ स्पेसिफिक लोगों के पास होते थे, अदरवाइज़ दुनिया क्या करती थी पुराने ज़माने में? चाँद, तारों के, सूरज के मतलब उनके मोमेंट से वो कहाँ चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, भई अभी चाँद यहाँ है, आज चाँद इतना दिख रहा है तो कौन-सा दिन होगा, ठीक है? याद करो, चाँद देख के तो हमारे घर के बड़े-बूढ़े लोग ये बता देते हैं, हाँ भई पूर्णिमा आने वाली है या अमावस आने वाली है, isn't it? So there is a great importance. These were often used by people in their day-to-day conduct and a better understanding of climate and rainfall patterns for timely sowing and choice of crops, fixing the dates of seasons and festivals. Clear everyone? आज भी हमें अगर कोई मुहूर्त निकालना होता है तो हमारे पंडित जी पंचांग देखते हैं. Clear everyone? ग्रहों की दिशाएं देखते हैं. So there is literally very importance in our day-to-day life. Clear everyone? Students, अब हम discuss करते हैं very important object of our night sky, that is the moon. हमारा चंदा मामा, चांद. बहुत सारे नाम हैं इसके. Clear everyone? Students, अब इस मून के बारे में हम बहुत सारी नई नई चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं. For understanding them, let's do a activity. Clear everyone? And it is easy one. If you will perform this activity, it's very understanding. It will be very clear in your mind. Okay? So student, what you have to do? Observe the moon continuously for several nights, preferably from one full moon to the next. Yes. अब full moon क्या होता है? जब पूर्णिमा होती है. क्लियर? जब एक पूर्णिमा से अगली पूर्णिमा तक आप उसको फुल ऑब्जर्वेशन करेंगे. ओके? मेक अ स्केच ऑफ द मून एवरी नाइट इन योर नोटबुक एंड नोट डे फ्रॉम द डे ऑफ द फुल मून. ठीक है? अब फुल मून के बाद क्या होता है? चांद घटता है, बढ़ता है, क्या उसका शेप रहता है, दैट ऑल यू हैव टू ऑब्जर्व एंड जस्ट ड्रॉ द स्केच इन योर notebook. Also note every day the part of the sky east or west in which the moon is seen. Yes, it is very important. आपको ये भी ऑब्जर्व करना है साथ के साथ कि आपको जो चांद दिख रहा है वो स्काई के कौन से पार्ट में दिख रहा है, ईस्ट में दिख रहा है या वेस्ट में दिख रहा है. क्लियर एवरीवन? हैव अ लुक हियर. दिस गर्ल इज ट्राइंग टू मेक द स्केच ऑफ द मून फेजेस. ठीक है? अब देखो इसने 3 स्केचेस बना लिए हैं. अब ये 4th और 5th बनाने मिला है. ओके? सो स्टूडेंट्स, इज देयर अ चेंज इन द शेप ऑफ द मून एवरी डे? सो you have to answer these questions, but I am sharing answers with you. Yes, there is change. Okay? Are there days when the shape of moon appears to be perfectly round? Yes. Here it is. Are there days when the moon cannot seen at all even if the sky is clear? Yes. देखो, पूर्णिमा होती है तब चांद बिल्कुल फुल दिखता है और अमावस्या होती है तो चांद हमें बिल्कुल नज़र नहीं आता है. क्लियर एवरीवन? स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं फेजेस ऑफ द मून की. क्लियर? ये जो आपको अभी एक्टिविटी में बोला कि चांद फुल मून, एक फुल मून से दूसरे फुल मून तक कैसा दिखता है, उसके स्केचेस आपको बनाने हैं. व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू जस्ट कंपेयर दो स्केचेस विथ these phases of the moon. Clear everyone? So students, the various shapes of bright part of the moon as seen during a month are called phases of the moon. Have a look here class 8. क्या हमें चांद आसमान में ऐसा नज़र आता है? देखो, कई बार तो बिल्कुल सिर्फ एक लकीर का जैसा दिखता है और कई बार हमें बिल्कुल सर्कल जैसा दिखता है. That's like a sphere. Isn't it? So student, the day on which the whole disk of the moon is visible known as the full moon day, और जिसे हम हिंदी में पूर्णिमा भी कहते हैं. Clear? Thereafter, every night
the size of the bright part of the moon appears to become thinner and thinner. धीरे धीरे वो पतला होता जाता है. Clear everyone? On the 15th day, the moon is not visible. देखो अब 15वें दिन पे 15th डे पे क्या है, हमें चांद दिखता नहीं है. एंड दैट इज व्हाट डे? दैट इज द न्यू मून डे, और जिसको हम हिंदी में कहते हैं अमावस्या. ओके, दिस डे इज नोन एज अ न्यू मून डे और अमावस्या. क्लियर एवरीवन? The next day, only a small portion of the moon appears in the sky. Okay, this is known as the crescent moon. It is just look like this. Clear everyone? Then again the moon grows larger every day. On the 15th day, once again we get a full view of the moon. समझ में आया? एक फुल मून से हमने हमारी जर्नी स्टार्ट करी, नेक्स्ट फुल मून तक आए. ओके, समझ में आया? Phases of the moon play an important role in our social life. Almost all festivals in India are celebrated according to the phases of the moon. Yes. देखो, हमारे इंडियन कल्चर में चांद की कलाओं का बहुत महत्व है. चांद की कलाएं मीन्स फेजेस ऑफ द मून. ओके, देखो दिवाली कब मनाते हैं? जब अमावस होती है. बुद्ध पूर्णिमा ऑब्वियस सी बात है, फुल मून होता है. ओके, सो दिवाली इज सेलिब्रेटेड ऑन द न्यू मून डे. क्लियर? बुद्ध पूर्णिमा एंड गुरु नानक्स बर्थडे, जो गुरु नानक जयंती हम मनाते हैं, आर सेलिब्रेटेड ऑन full moon day. Mahashivratri is celebrated on 13th night of waning moon. Eid al-Fitr is observed on the day following the sighting of the crescent moon. जब चांद दिखता है. Clear everyone? Students, do you know that the time period between one full moon to the next full moon is slightly longer than 29 days? In many calendars, this period is called a month. हमारे यहाँ, हमारे हिंदू कल्चर में इसी को हम कंसिडर करते हैं एक महीना, 1 मंथ. देखो इंग्लिश कैलेंडर में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, सो ऑन. हिंदी में हमारे यहाँ पे क्या होते हैं? याद करो, जो हमारे हिंदू धर्म के जो मंथ्स के नेम हैं, याद करो. देखो कि क्या क्या होते हैं? चैत्र, बैशाख, माघ, सावन, ठीक है ना, पोष. ये सारे क्या हैं? हमारे हिंदी कैलेंडर के महीनों के नाम हैं, मंथ्स नेम है. क्लियर एवरीवन? स्टूडेंट्स, व्हाई डज द मून चेंजेस इट्स शेप एवरी डे? अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. चांद हर रोज अपना शेप क्यों बदलता है? क्या जरूरत है भाई उसको बदलने की? क्या कोई स्पेसिफिक रीजन है उसके पीछे? स्टूडेंट्स, द मून डज नॉट प्रोड्यूस its own light that we already had studied in class 6 and class 7. It is non-luminous object. इसकी खुद की कोई रोशनी नहीं होती है. समझ में आ रहा है? ये किसकी रोशनी से चमकता है? सन की रोशनी से चमकता है. Clear everyone? It does not produce its own light, whereas the sun and other stars do. We see moon because the sunlight falling on it gets reflected towards us. ये चीज़ तो हमने रिफ्लेक्शन वाले चैप्टर में भी पढ़ी थी. Clear everyone? So student, what happened exactly? देखो ये हमारा सन है, सन से लाइट आ रही है. Clear? And here is our moon and here is earth. Clear everyone? देखो बच्चा क्या होता है, चांद के ऊपर सन की, चांद के उस हिस्से पर जिस पर सन की रेज आ रही हैं, वो रेज सन से आ रही हैं. अब मून क्या करता है? उन रेज को रिफ्लेक्ट करता है और हम चांद के उस हिस्से को अर्थ पे से देख सकते हैं. चांद की अपनी कोई रोशनी नहीं है. इट ओनली रिफ्लेक्ट द लाइट विच इट रिसीविंग फ्रॉम द सन. Clear everyone? We therefore see only that part of the moon from which the light of the sun is reflected
रिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स आस। समझ में आ गया? हमें चांद का वही हिस्सा दिखता है जिस हिस्से से लाइट रिफ्लेक्ट होती है, एंड दैट लाइट इज कमिंग फ्रॉम सन। इज दैट क्लियर एवरीवन? समझ में आ गया? स्टूडेंट्स, अब एक एक्टिविटी करते हैं कि चांद अपनी पोजीशन पे, ठीक है, अपनी पोजीशन पे घूमता है, कैसे घूमता है, हमें उसकी डिफरेंट डिफरेंट फेजेस कैसे दिखाई देती हैं। फॉर दिस एक्टिविटी स्टूडेंट्स, टेक अ बिग बॉल और अ पिक्चर, पेंट हाफ ऑफ इट वाइट एंड हाफ ब्लैक। एक गोल सी बॉल ले लो, ठीक है, उसको आधी को ब्लैक पेंट कर लो, आधी को वाइट पेंट कर लो। Draw a circle of radius about 2 meter on the ground. Okay, just like this here on that ground. Divide the circle into 8 equal parts. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और एक just back. Clear everyone? समझ में आ रहा है? Stand at the center of the circle. ये एक रफ स्केच देखो, यहाँ पर आपको खड़ा होना है, ये आपका सर्किल है, ठीक है, यहाँ पर आपने ये सिंपल इसका पार्टीशन किया। आस्क अ फ्रेंड टू होल्ड द बॉल एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द सर्किल। ओके, सपोज इट्स यू एंड शी इज योर फ्रेंड। आपने इसको क्या कहा कि आपको बॉल पकड़नी है, ठीक है, और आपको डिफरेंट डिफरेंट जो आपने मार्केशन करे हैं, आपने पॉइंट्स बनाए हैं आपके सर्किल पे, वहाँ पर खड़े होके और इस बॉल को पकड़ना है। Ask her to keep the white portion of the ball always towards the sun. ठीक है, आपको बॉल का जो सफेद वाला हिस्सा है वो हमेशा सूरज की तरफ रखना है। Is it clear everyone? If you are performing this activity in the morning, then the white portion of the ball should be kept towards the east. क्योंकि ईस्ट से ही तो क्या हो रहा है, सनराइज हो रहा है। क्लियर क्लास? इफ द एक्टिविटी इज बीइंग परफॉर्म्ड इन द आफ्टरनून, देन द व्हाइट पोर्शन ऑफ द बॉल शुड बी कैप्ट टूवर्ड्स द वेस्ट। ये सिंपल स्पेसिफिक कंडीशंस हैं जो हमें ध्यान रखनी है। क्लियर एवरीवन? इन ईच केस द लाइन dividing the white and the black portion is kept vertical. Yes, देखो ये आपकी बॉल है, ठीक है, आपको क्या करना है, जो ब्लैक एंड वाइट का जो पार्टीशन की लाइन है, इट शुड बी वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल नहीं बनानी है, ठीक है। ये हो गया आपका ब्लैक वाला हिस्सा, ये हो गया आपका वाइट वाला हिस्सा, ऐसे नहीं बनाना है। क्लियर एवरीवन? समझ में आ रहा है? हैव अ लुक हियर, जैसा इस लड़की ने पकड़ रखा है। स्टैंडिंग एट द सेंटर ऑफ द सर्किल, observe the visible white portion of the ball while your friend stands at the points on the circle marked earlier. ठीक है, अब आपको हर बार इस बॉल को ऑब्जर्व करना है। कब कब? वहाँ पर जहाँ पर आपने पहले से पॉइंट्स मार्क कर रखे हैं। आपकी फ्रेंड यहाँ होगी, फिर वो यहाँ आएगी, फिर वो यहाँ आएगी, फिर वो यहाँ आएगी। इन सारे पॉइंट्स पे वो अपना पोजीशन चेंज करेगी और आपको हर बार जो ब्राइटर पार्ट है उसको ऑब्जर्व करना है। समझ में आ गया क्लास? ओके स्टूडेंट्स, ड्रॉ द शेप ऑफ द वाइट पोर्शन एज यू सी इट। अब हमने क्या देखा वो हमें याद तो बेटा इतना रहता नहीं है, तो हमने क्या करना है, हमें उसका ड्रॉ कर लेना है किसी भी कॉपी पे। कंपेयर योर ड्रॉइंग विद द डिफरेंट फेजेस ऑफ द मून। जो हमने मून की डिफरेंट फेजेस थी उससे इसको कंपेयर करना है। यू विल ऑब्जर्व द मून अपीयर्स डिफरेंट एट डिफरेंट पोजिशन इन इट्स ऑर्बिट। नाउ ये जो आपने ये सर्किल बनाया, इट बिकम द orbit of the moon. So the activity is clear in everybody's mind. Students, have a look again the position of the moon in its orbit and its corresponding phases. Here we are having sun from where the moon is getting light, and these are the different phases of the moon which we observe in the night and sky. Clear everybody? Students, you already know that moon revolves around the earth, and the earth
along with moon revolves around the sun. This is the simple diagram which is showing that कि अर्थ के साथ साथ मून भी रिवॉल्व करता है अराउंड सन. क्लियर एवरीवन? स्टूडेंट्स, the size of the illuminated part of the moon visible from the earth increases each day, okay, each day after the new moon day that we already had studied. भाई जब भी न्यू मून होगा उसके बाद क्या होगा? धीरे 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 चांद का साइज बढ़ता जाएगा, और जब भी फुल मून होगा, फुल मून के बाद धीरे 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 चांद का साइज घटता जाएगा. क्लियर एवरीवन? The moon completes one rotation on its axis as it completes one revolution around the earth. This is so simple to understand. Clear everyone? Students, अब हम डिस्कस करते हैं मून सरफेस. देखो, चांद के बारे में हमने बहुत सारी लिटरेचर, बहुत सारे पोएम्स, कविताएं, कहानियाँ, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं, और उन सब में चांद को क्या दिखाते हैं कि चांद बहुत चमकीला है, और उसको हम कंपेयर करते हैं डिफरेंट थिंग्स से. देखो चांद जैसा मुखड़ा है ना, चांद की जैसी लग रही है, सो शाइनी, इजंट इट? सो स्टूडेंट्स, ये जो मून है, ये from ancient time till now, it is a very good and a big factor in our songs, in our literature, in our poems, isn't it? So class, we know that the moon is a fascinating object for poets and storytellers. लेकिन ये जो हम कंपैरिजन करते हैं ना, चांद सा मुखड़ा, ये इतना शाइनी, बट रियल में क्या है, जो सरफेस है मून का वो बिल्कुल भी वैसा नहीं है जैसा हम इसका कंपैरिजन डिफरेंट चीज़ों को कंपेयर करने में करते हैं. एक्चुअली ये जो मून है, इट इज़ हैविंग सम ग्रूव्स, इट इज़ हैविंग स्टीप माउंटेन्स, यहाँ पर बहुत सारे गड्ढे हैं. क्लियर एवरीवन? और अगर आपने कभी फुल मून देखा हो, ध्यान से देखा हो, तो आपको उस चांद के अंदर है ना, कुछ हम हिंदी में कहते हैं कुछ दाग नज़र आते हैं, कुछ स्कार्स नज़र आते हैं. व्हाट एग्जैक्टली इट इज़? इफ़ यू हर्ड अ स्टोरी, मैं जब छोटी थी तब मैंने पूछा था ये चांद के अंदर जो ये दाग है ये क्या है, तो मुझे मेरी नानी ये कहती थी कि एक ना बूढ़ी डोकरी है और वो सूत काट रही है. दैट मीन्स शी इज़ डूइंग वर्क ऑन चरखा. बट ये सब मैथोलॉजिकल स्टोरीज बहुत पहले की बात है, लेकिन आज हमें ये पता है कि जो मून का सरफेस है इट इज़ रफ. क्लियर? और क्या क्या है वहाँ पर मून के सरफेस पे? बट व्हेन द एस्ट्रोनॉट्स लैंडेड ऑन द मून दे फाउंड दैट मून सरफेस इज डस्टी एंड बैरन. देखो, धूल मिट्टी से भरा हुआ है, बैरन है, दैट मीन्स वहाँ पर लाइफ नहीं है और ना ही ऐसे कोई फैक्टर्स है. क्लियर एवरीवन? There are many craters of different sizes. Yes, have a look here. कितने छोटे बड़े और भी बहुत बड़े गड्ढे हैं. It has a large number of steep and high mountains and sometimes इसके अंदर कुछ हमारी अर्थ पे जो हाईएस्ट माउंटेन है वैसे उससे भी बड़े माउंटेन्स पाए जाते हैं. ठीक है? Some of these are as high as the highest mountains on the earth. So this is the surface of moon. The moon has no atmosphere and that's why it's barren. Clear everyone? It has no water and we already had studied that के लाइफ को सस्टेन करने के लिए जो भी इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है एयर और वाटर. क्लियर? कैन एनी लाइफ एग्जिस्ट ऑन द मून? नो. वेरी सिंपल आंसर. Clear everyone? Students, did you know that on July 21, 1969, the American astronaut Neil Armstrong, याद कर लेना अच्छे से, American astronaut on July 21, 1969 landed on the moon for the first time. और इनके साथ कौन थे?
एडविन एल्ड्रिन। क्लियर एवरीवन? सबसे पहले चांद पे कौन गया? नील आर्मस्ट्रॉन्ग, साथ में थे एडविन एल्ड्रिन, जुलाई 21, 1969। ओके, अब हम बात करते हैं स्टार्स की। स्टार्स, तारे जो हमें रात को आसमान में नजर आते हैं टिमटिमाते हुए। Clear everyone? Students, what other objects do you see in the night sky? There is a large number of stars in the sky. Some of them are bright and where some are dim. कुछ तारे ज़्यादा चमकीले होते हैं और कुछ कम चमकीले होते हैं. Stars are huge heavenly bodies. Yes, it is the part of celestial body. So that's why they are also known as heavenly bodies. Class, do you know the sun is also a star? But why does it appear so large compared to other stars? Yes, तारे तो और भी तो आसमान में इतने सारे तारे हैं, वो तो बहुत छोटे नज़र आते हैं comparative to our sun. स्टूडेंट्स, जो चीज़ डिस्टेंस पे जितनी ज़्यादा दूर होती है वो हमें उतनी ही छोटी नज़र आती है और उसका शाइन भी डिस्टेंस के अकॉर्डिंग कम होता जाता है. सपोज करिए वी आर हैविंग टू ऑब्जेक्ट एंड दिस ऑब्जेक्ट इज near to you and this one is a little bit far away from your eyes. So which will be the bigger in size? This will be bigger in size and that this one will be appears smaller in size. Clear everyone? And this is the same phenomena with stars and the sun. Clear everyone? The stars are millions of times further away than the sun. बहुत ज़्यादा दूरी पर है बच्चा. Therefore the stars appear to us like points. छोटे छोटे points की तरह नज़र आते हैं रात को आसमान में देखना आज. Okay? The sun is nearly 150 million kilometer away from the earth. देखो, ये वाला डिजिट हम लोगों ने पढ़ लिया, हमारे लिए पढ़ने में आसानी थी. ठीक है, ये वो डिजिट था. But the next nearest star is Proxima Centauri, that is so far away from our earth. And student, that's why it is not possible for us to calculate that distance in kilometers. वो इतना लंबा डिस्टेंस हो जाता है, उसको हम कब तक करेंगे? 1000, lakh, millions, billions, trillions, अरब खरब कितना कैलकुलेट करेंगे, कितना किलोमीटर्स में कैलकुलेट करेंगे? Some stars are even further away, और कुछ तो उनसे भी बहुत आगे हैं. Large distances are expressed in another unit and that is light year. Again a very important question. ऐसे डिस्टेंसेस जो बहुत ज़्यादा बड़े हैं इनको कैलकुलेट करने के लिए, कौन सा डिस्टेंसेस जो हम स्टार के डिस्टेंसेस हैं इनको कैलकुलेट करने के लिए एक दूसरी यूनिट को यूज़ करते हैं एंड दैट यूनिट इज लाइट ईयर. इज इट क्लियर एवरीवन? इट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 year. एक साल में लाइट जितना डिस्टेंस कवर करती है वो होता है 1 light year. Clear everyone? Remember that the speed of light is about what? Count it. 1, 10, 100,000. Fair? 10,000. 3 lakh kilometer per second. Clear everyone? समझ में आ गया? ये हमारा क्या है? It is the speed of light. Okay? In fact, the stars are present in the sky during the daytime also. अगर हम ये कहें कि हम जब डे होता है आसमान में जब हमें सिर्फ सन नज़र आता है उस टाइम स्टार नहीं होते हैं या मून नहीं होता है, ऐसा पॉसिबल नहीं है. वो होते हैं लेकिन क्योंकि सन हमारे ज़्यादा करीब है और उसकी जो ब्राइटनेस होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से स्काई में जो भी सारे ऑब्जेक्ट हैं वो हमें क्लियरली नज़र आते ही नहीं हैं. ओके, however they are not visible then because of the bright sunlight.
Is it clear to everybody? Students, let's do our activity to understand some more interesting fact. So what we have to do in this activity, you have to observe some prominent star or the group of stars in the sky for about 2 hour or more. अब आप कहेंगे मैम इतनी देर तक आसमान में कौन देखेगा? हम देखेंगे क्योंकि हमें एक्टिविटी करनी है और इससे हमें समझ में आएगा. Clear everyone? What do you find? These are the questions that you have to answer and write down in your copy. Do you find any change in the position of stars in the sky? देखो वैसे तो आपको ये सारी की सारी चीज़ें ऑब्जर्वेशन के बाद फिल करनी है, बट आई एम टेलिंग यू राइट नाउ. द स्टार्स अपीयर टू मूव फ्रॉम east to west. Yes, a star which rises in the east in the evening. Again, I'm reading. Listen carefully. A star which rises in the east in the evening sets in the west in the early morning. Clear? और ये दिखता है, देखना आज. Clear? The sun appears to rise in the east and set in the west as the earth rotates from west to east on its axis. ये अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि सनराइज जो होता है वो ईस्ट में क्यों होता है और सनसेट वेस्ट में क्यों होता है. बिकॉज अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट ऑन इट्स एक्सिस. इज इट क्लियर एवरीबडी? क्या अभी कोई ऐसा स्टार है जो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता या वो हमें अपीयर नहीं होता कि वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव कर रहा है? यस, देयर इज अ स्टार एंड दैट इज पोल स्टार, जिसको हम पुच्छल तारा भी कहते हैं. क्लियर एवरीवन? देयर इज एक्चुअली अ स्टार, द पोल स्टार. क्लियर? समझ में आ गया? कौन सा स्टार? पोल स्टार, विच इज सिचुएटेड in the direction of the earth axis. Have a look here. This is your earth axis. Clear everyone? And it is situated here where there is axis of our earth. Clear? It does not appear to move. The pole star lies close to the axis of the rotation of the earth. So that's why this pole star does not appear to move. So this is enough for today's video. We discussed today about the moon, about the star, and the remaining topics will be discussed in the next part of this chapter. Till then, revise what we learned today and take care of yourself. Thank you.